جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا پلیز. آواز اور بورڈ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا. آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اردو شاعری کی ایک نئی صنف کو، جس کو ہم لوگ جانتے ہیں قصیدے کے حوالے سے. تو آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہم لوگ بات کریں گے قصیدے. قصیدے کا آغاز و ارتقا اور اس کا فن. آج کی جو ہماری کلاس کا موضوع ہے وہ ہے آغاز و ارتقا اور اس کا فن. ایک بار آپ لوگ کنفرم کر دیجیے گا. آواز اور بورڈ کلیئر ہے؟ محمود علی، وکیل انصاری، وجارت خان، ایک بار کنفرم کر دیجیے گا. آواز اور بورڈ کلیئر ہے؟ ٹھیک، اوکے. چلیے، آج کی جو ہماری بات ہے وہ آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں قصیدے سے. ٹھیک ہے، پہلے بات کرتے ہیں قصیدہ کی تاریخ یا قصیدے کا آغاز. قصیدے کی جو تاریخ ہے یا قصیدے کا جو آغاز ہے وہ شروع ہوتا ہے عرب سے. اور عرب میں کہاں؟ عرب میں قبیلے سے. وہاں پر بہت سارے قبیلے ہوتے تھے اور انہی قبیلوں کے کیا ہوا کرتے تھے؟ سردار ہوا کرتے تھے. اور انہی سردار کی مدح میں جو ہے وہ اشعار کہے گئے، اور انہی اشعار کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی چیز کا ارادہ کرنا. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا قصیدہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. قصیدہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے یا جس لفظ سے نکلا ہے اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کو کہنا یا کسی بات کا ارادہ کرنا یا کسی بات کو کیا کرنا؟ گھڑنا. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ قصد سے نکلا ہے. قصد سے مراد ہوتا ہے کسی بات کا عہد کرنا یا کسی بات کا قصد کرنا. اور قصد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ قصائد ہوتی ہے. یا قصیدے کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قصائد. اور اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مغز غلیظ کے. مغز غلیظ کے. مغز غلیظ کہہ لیں یا شتبر کہہ لیں. شا تا با اور را. شتبر کہہ لیں یا کہہ سکتے ہیں گاڑا ہوا. گاڑا ہوا یا گڑا ہوا. یعنی کسی بات کو ارادہ کرنے کے لیے کسی چیز کا ہم نے قصد کر لیا، اس کا سبتر کر لیا، یا اسے جو ہے وہ ہم نے کیا کر دیا؟ گاڑا کر دیا. یا کسی چیز کا ہم نے کیا کر لیا؟ ارادہ کرنا یا ارادہ کر لیا. تو یہ ساری چیزیں کس کے معنی سے نکلی ہیں؟ یہ ساری کی ساری نکلی ہیں لفظ قصد سے. ٹھیک، لفظ قصد سے یہ ساری چیزیں نکلی. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں جو ہے وہ کیا کرنا؟ اس کی تعریف بیان کرنا. ٹھیک، قصیدے میں جو ہے وہ تعریف بیان کی جاتی ہے. اور تعریف بھی کس کی جاتی ہے؟ زندے لوگوں کی. اسی لیے الطاف حسین حالی نے ایک قول ہے، ان کی تصنیف ہے جس کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری، جو کب لکھی گئی ہے؟ 1893 میں. اسی میں ہی کہا ہے زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں یا کہا ہے. زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ الطاف حسین حالی نے کہا ہے. کیا ہے؟ الطاف حسین حالی نے ان کو کیا کہا ہے؟ زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو کیا کہا ہے؟ مرثیہ کہا ہے. اب اس مرثیہ کہنے کو جو ہے وہ اس کی جو ہے قصیدے کے جو ہے وہ الگ الگ موضوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، قصیدے کے جو ہے وہ الگ الگ موضوع ہوتے ہیں. تو کوئی بچہ بتا سکتا ہے
موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی کتنی اقسام ہیں؟ موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی کتنی اقسام ہیں؟ محمود علی کہہ رہے ہیں 3. ٹھیک ہے، اور بتائیے موضوع کے لحاظ سے قصیدے کی کتنی اقسام ہیں یا کتنی قسمیں ہیں؟ شمع ناز بتا رہی ہیں 2. اوکے ٹھیک ہے، باقی لوگ بتائیے موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی اقسام کتنی ہیں؟ تو یاد رکھنا موضوع کے لحاظ سے قصیدے کی جو اقسام ہیں وہ ہیں 4. ٹھیک، کتنی ہے؟ 4. کون کون سی؟ پہلی آتی ہے ہمارے پاس مداحیہ، دوسری آتی ہے ہمارے پاس ہجیہ، اور تیسری آتی ہے ہمارے پہ وعیزیہ، اور چوتھی آتی ہے ہمارے پاس بیانیہ. یہ موضوع کے لحاظ سے قصیدے کی کیا ہے؟ موضوع کے لحاظ سے قصیدے کی اقسام ہے. ٹھیک ہے، مداحیہ جس میں تعریف بیان کی جائے، اس قصیدے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مداحیہ قصیدہ کہتے ہیں. ہجیہ قصیدہ جس میں کسی کی برائی کی جائے، وعیزیہ جس میں کسی کو نصیحت کی جائے، اور بیانیہ جس میں کوئی حالات یا کوئی کیفیت بیان کی جائے. ٹھیک، حالات یا کیفیت جو ہے وہ بیان کی جائے، اسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا؟ یہ موضوع کے لحاظ سے کیا ہے؟ ہمارے 4 اقسام ہیں. کس کی؟ قصیدے کی. ٹھیک، قصیدے کی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی تعریف کی یا اس کی ڈیفینیشن کی کہ قصیدے کو ہم لوگ کس نام سے یا کس تحریک سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں یا جس کے پہلے شعر کے دونوں، اس نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقیہ یعنی کہ باقی کے، اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہو. اس نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں. یہ کیا ہوتی ہیں؟ اس میں جو ہے وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں ہم قافیہ اور ہم ردیف کے ساتھ. اسی لیے ماہرین نے جو قصیدہ ہے یا قصیدے کو حیت کے اعتبار سے کس سے ملتا جلتا کہا ہے، یا کس سے مناسبت رکھنے والی صنف کہا ہے؟ حیت کے اعتبار سے، کیونکہ یہ ہم ردیف اور ہم قافیہ حیت میں ہی آتے ہیں. کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو حیت ہی دے، وہ آپ کو ساعت دے سکتا ہے کہ قصیدے کو ساعت کے اعتبار سے کس کی طرح بتایا گیا ہے، صورت کے لحاظ سے کس کی طرح بتایا گیا ہے، اس کے علاوہ شکل کے اعتبار سے کس کو بتایا گیا ہے، اس کے علاوہ بناوٹ کے لحاظ سے کس کی طرح بتایا گیا ہے. تو حیت بھی نہ آئے،
ساعت آ جائے، صورت آ جائے، شکل آ جائے، بناوٹ آ جائے، ہاں، تو ان سب کا آنسر ایک ہی ہوگا اور وہ ہوگا آپ کا غزل۔ ٹھیک ہے، کیونکہ قصیدے کو حیت کے، صورت کے، شکل کے، بناوٹ کے اعتبار سے غزل سے ملتا جلتا بتایا ہے۔ بس غزل کا موضوع کیا تھا؟ عشق و محبت تھا، غزل کا عشق و محبت، لیکن یہاں قصیدے کے جو موضوع ہیں وہ الگ الگ ہیں، جو میں نے آپ کو جو ہے وہ لکھوا دی۔ ٹھیک ہے، اور اسی لحاظ سے جو ہے وہ قصیدے میں کیا ہوتا ہے، کسی کی چاپلوسی کی جاتی ہے۔ قصیدے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چاپلوسی کرنا، یا کسی سے کسی طرح کا کوئی انعام و اکرام لینا۔ اسی لیے قصیدے کو ہم لوگ اسی لیے ہم قصیدے کو ہم لوگ خوش آمد اس لیے قصیدے کو ہم خوش آمد کلام بھی کہتے ہیں، خوش آمد کلام بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اب قصیدہ کہنے کے لیے بھی ایک پیراگراف ہوتا ہے یا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے، اس پیرامیٹر میں ہی آپ لوگ قصیدہ کہیں گے تو آپ کا قصیدہ کیا ہوگا، مقبول اور مشہور ہوگا۔ وہ کیا کیا ہے یا وہ کس طریقے سے، وہ ہم لوگ ابھی کریں گے۔ جیسا آپ کو میں نے بتایا، غزل اور قصیدہ دونوں حیت کے اعتبار سے سیم ہے، تو ظاہر سی بات ہے جیسے غزل کا پہلا شعر کیسا ہوتا ہے، مقطع ہوتا ہے، سوری مطلع ہوتا ہے، اور مطلع کے لیے کیا ہونا چاہیے، ہم ردیف ہونا چاہیے اور ہم قافیہ ہونا چاہیے۔ پہلا شعر غزل کا ہم ردیف اور ہم قافیہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اسی پہلے مطلع کو ہم لوگ قصیدے میں جب پڑھتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں اسے تشبیب۔ ٹھیک ہے، تشبیب کیا کہتے ہیں، تشبیب، تشبیب کہہ سکتے ہیں، تمہید کہہ سکتے ہیں، یا نصیب کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تینوں ہی باتیں ایک ہیں، یعنی کہ قصیدے کا جو پہلا شعر ہوگا اسے ہم ردیف کہتے ہیں، ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے، اسے ہم لوگ تشبیب کہتے ہیں، تمہید کہتے ہیں، یا نصیب کہتے ہیں۔ قصیدے کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے ہم لوگ تشبیب، تمہید یا نصیب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے ہم لوگ مطلب بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ غزل کی حیت سے ملتا جلتا ہے اسی طرح سے، اور اس میں ایک سے زیادہ مطلب بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ جو غزل میں کہتے ہیں وہی ہم لوگ قصیدے میں بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قصیدے میں بھی ہم لوگ اسے وہی کہتے ہیں۔ جیسے ایک مطلب کے بعد دوسرا مطلب آ جائے تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، حسن مطلب کہتے ہیں نا، حسن مطلب، یا اس سے اور زیادہ آ جائے، دو سے زیادہ مطلب آ جائے تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں ذو مطلعین، ذی مطلعین جو ہے وہ ہم لوگ اسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذو مطلعین کو ایک دوسرے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، اسے کہتے ہیں تجید مطلع۔ ٹھیک ہے، اگر ذو مطلعین نہ آئے تو تجید مطلع آ جائے تو بھی آنسر کیا ہوگا، یہی ہوگا، اگر ایک سے زیادہ مطلع آ جائے۔ ٹھیک ہے، ذو مطلعین، ٹھیک ہے، یا ذو متعلق۔ ٹھیک، یہ بھی اسی کے نام ہے۔ تو یہ ایک سے زیادہ مطلع آ جاتا ہے تو ان سب کے لیے ان سب الفاظوں کا جو ہے وہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تشبیب کو ہم لوگ پہلے آتا ہے قصیدے میں، جسے ہم لوگوں نے کیا کہا تھا، نصیب بھی کہا تھا۔ ہاں، مطلع ثانی ہم لوگ غزل میں کہتے ہیں، یہاں ہم لوگ قصیدے کی بات کریں، مطلع ثانی بھی جو ہے وہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہی جو قصیدے میں ہوتا ہے، بعد میں اس میں کیا آ جاتا ہے، مقطع آ جاتا ہے، جو شعر کے آخر میں آتا ہے، جس میں تخلص جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں۔ تو قصیدے میں بھی جو ہے وہ یہیں پر آ جاتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کے بیچ جیسے غزل میں جو سب سے اہم خصوصیات تھی وہ تھی اعجاز و اختصار،
ٹھیک اسی طرح سے اسٹار بنا کے لکھ لینا قصیدے میں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگ کسی کی تعریف کریں گے تو الفاظ کا انتخاب جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قصیدے کا جو بنیادی چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے شوکت الفاظ اور بلند تخیل، یعنی کہ الفاظ بھی اچھے ہوں اور اس کا سوچنے کا معیار جو ہو وہ کیا ہو، وہ بھی اچھا ہو، وہ بھی کیا ہو، اچھا ہو۔ تو بلند تخیل اور شوکت الفاظ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب یہ بھی کس میں کی جاتی ہے شوکت الفاظ اور بلند تخیل؟ اس کے کہنے کی بھی لمیٹیشن ہے۔ اس کو جو کہنے کے لیے ہمیں کم سے کم 21 اشعار کی ضرورت ہوتی ہے، کم سے کم ہمارے پاس 21 اشعار ہوں تب ہم لوگ شوکت الفاظ اور بلند تخیل کو کیا کر سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں۔ کم سے کم 21 اور زیادہ سے زیادہ کوئی لمٹ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماہرین نے 200 اشعار کو جو ہے وہ اچھا مانا ہے کہ 200 اشعار کا قصیدہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ شوکت الفاظ اور بلند تخیل کو بیان کرنے کے لیے 21 اشعار کا ہونا ضروری ہے۔ زیادہ کی کوئی کیا ہے، لمیٹیشن نہیں ہے۔ زیادہ جو ہے وہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ آپ کو اس کی حیت بتائی ہے کہ حیت کے اعتبار سے غزل سے کیا رکھتا ہے، ملتا جلتا ہے۔ اگر ہم بات کریں قصیدے کی حیت کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں یا کتنی اقسام ہیں، قصیدے کے حیت کے اعتبار سے کتنی اقسام ہیں، قصیدے کی حیت کے اعتبار سے یا حیت کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں یا کتنی اقسام ہیں، حیت کے اعتبار سے بتانا ہے۔ آپشن دو آپ لوگوں کو، چلیے آپشن لے لیجیے گا، 2، 3، 4 اور 5۔ یہ آ گیا 2، 3، 4 اور 5، بالکل شوقین اور زویا نے صحیح بتایا ہے۔ آنسر ہو جائے گا 2۔ دو کون کون سے ہیں آپ سبھی کو پہلے ہی پتا ہے، بس میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، ریوائز کرا رہا ہوں، اور وہ ہے ایک ہے خطابیہ اور دوسرا ہے تمہیدیہ۔ خطابیہ اور تمہیدیہ یہ کیا ہے، یہ حیت کے اعتبار سے اور موضوع کے اعتبار سے کتنے ہیں، 4 ہیں۔ اگر ہم بات کریں خطابیہ کی، کہ خطابیہ قصیدہ کون سا ہوتا ہے تو لکھ لیجئے گا جس میں شاعر تمہید باندھے، جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر تعریف یا برائی کرنا شروع کر دے اسے خطابیہ کہتے ہیں۔ جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر تعریف یا برائی کرنا شروع کر دے اسے خطابیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے تمہیدیہ، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے تمہیدیہ، کہ جس میں شاعر مدح یا ہجو یا تعریف یا برائی بھی لکھ سکتے ہیں، جس میں شاعر مدح یا ہجو سے قبل یعنی کہ پہلے، جس میں شاعر مدح یا ہجو سے قبل تمہید کہتا ہے، تمہید باندھتا ہے، اسے ہم تمہیدیہ قصیدہ کہتے ہیں۔
उसे हम तमहीद कहते हैं। हाँ, मजम्मत भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम है इसके। ठीक, तो इसमें होता है हमारा तमहीदिया और ये होता है हमारा खिताबिया कसीदा। एक बात और आप लोग नोट कर लीजिएगा, कसीदे में ही अहम चीज होती है, एक होता है मदा, एक होता है मद्दा, ठीक है, एक होता है ममदू और एक होता है मद्दा ही। इनका कभी कभी एग्जाम में जो है वो मतलब पूछ लेता है। इन सब का ताल्लुक जो है वो किससे होता है? हाँ, कसीदे से ही होता है। अगर हम मदह की बात करें तो मदह का मतलब क्या होता है? तारीफ। मदह का मतलब होता है तारीफ करना, ठीक है। तमहीद बांधना क्या, जरा बताइए। तमहीद बांधना यह होता है कि मान के चलिए आप किसी के वहां जा रहे हैं, किसी की रिश्तेदारी में जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि उस दूर में या उसका घर इतना शानदार है, उसके घर के बाहर की जो सड़क है वह बहुत चौड़ी है, उसके बाहर दरवाजे के एक फूल लगा हुआ है। यानी कि किसी चीज का नक्शा खींचना तमहीद कहलाता है, किसी भी चीज का। जैसे कल आपने किसी का नक्शा खींचा होगा कि तेरी जुल्फे इस तरह से काली हैं जैसे बादल पे छाई कोई काली घटा, तेरे हाथों की मेहंदी इस तरह से लाल है जैसे कोई खिलता गुलाब है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, उसे तमहीद कहते हैं कि किसी चीज को बयान करने से पहले उसकी तारीफ या उसके बारे में जिक्र करना। और कहा जाता है कि जिस कसीदे की तमहीद जितनी अच्छी होगी वो कसीदा उतना अच्छा होगा। ठीक है ना, याद रख लेना। चलिए, पहला मदा होता है, मदा कहते हैं तारीफ को, और मद्दा किसे कहते हैं? तारीफ करने वाले को, तारीफ करने वाले को। मद्दा तारीफ करने वाले को, और ममदू जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। तार तारीफ, जिसकी तारीफ की जाए उसे कहते हैं ममदू। ठीक है, इसके बाद मद्दाही, यानी कि तारीफ करने का तरीका या तारीफ करने का फाइल, या फिर सॉरी, तारीफ करने का फाइल। तो ये कुछ टर्मोलॉजी होती है, कुछ ये वर्ड हैं जो एग्जाम में इनके मीनिंग पूछ ले जाते हैं। लगते एक से ही हैं, लेकिन अगर हम इनको सही तरीके से देखें तो वो जो है इस तरह से आप लोगों के सामने आते हैं। मदह तारीफ, मद्दा तारीफ करने वाला, ममदू जिसकी तारीफ की जाए, और मद्दाही तारीफ करने का फाइल। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? मतलब यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? आगे चलें बेटा। ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, ये हैयत होगी तमहीदिया और कसीदी, और तमहीदिया और खिताबिया। अब इनको बयान करने के लिए, जैसे आपको किसी छत पे जाना होता है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप सीढ़ी से जाइए या आप किसी की कूद के फांद के जाइए, लेकिन उसके भी क्या होते हैं, तरीके होते हैं। तो खिताबिया या तमहीदिया कहने के भी क्या है, तरीके हैं। तो माहिरीन ने इन तरीके को जो नाम दिया है वो नया नाम दिया गया है कसीदे के इज्जाए तरकीब। कसीदे के इज्जाए तरकीब, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है तरकीबी को लेके कि इसमें कितने इज्जाए तरकीबी है। कहीं कहीं आपको 5 मिलते हैं, कहीं कहीं आपको 4 मिलते हैं, लेकिन हम लोग 4 के साथ जाना जो है वो पसंद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर 4 ही ऑप्शन को क्या गया है, माना गया है। और वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है तशबीब, तशबीब। दूसरा होता है गुरेज। तीसरा होता है हमारे पास मदा। और चौथा होता है हमारे पास दुआ। ठीक है, चौथा होता है हमारे पास दुआ। बाज लोग जो है दुआ से पहले एक होता है
हुस्न मतलब या हुस्न मतलब, हुस्न मतलब, या इसे हम लोग कहते हैं मद्दुआ, ये चौथा माना जाता है। लेकिन अगर हम सही देखें, एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच होते हैं, लेकिन इसको जो है वो जरूरी नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको हटा दें या इसको रिमूव कर देते हैं तो चार ही बनते हैं, तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ। एक सवाल आपका यहीं से बन जाता है कि इन चार इज्जाए तरकीबों में सबसे अहम इज्जाए तरकीबी कसीदे का कौन सा है? इन चार इज्जाए तरकीबी में सबसे अहम इज्जाए तरकीबी कौन सा है? बिल्कुल सबने बता दिया, ऑप्शन थ्री जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मदह। लेकिन डायरेक्ट उस पर नहीं जाते हैं, उससे पहले तशबीब कहनी होती है, उससे पहले गुरेज कहना होता है। तो इसके पहले हम लोग पहले पढ़ेंगे तशबीब को। किसको? तशबीब को। तशबीब को कसीदे का, कसीदे का पहला जुज या पहला इज्जाए तरकीबी माना जाता है। कसीदे को, तशबीब को कसीदे का पहला इज्जाए तरकीबी या पहला जुज माना जाता है। ठीक। तशबीब को हम लोग, तशबीब को हम लोग तमहीद भी कहते हैं, तमहीद भी कहते हैं, या नसीब भी कहते हैं, तमहीद भी कहते हैं या नसीब भी कहते हैं। और तशबीब का जो मायने निकलता है वो निकलता है फर्श बिछाना। क्या? फर्श बिछाना। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, तशबीब का मतलब होता है फर्श बिछाना। आप लोगों की किसी ने दावत की, आप लोग उसके घर पे गए, अगर कोई फटी पुरानी चादर पे या फटी हुई टेबल के दस्तरखान पे या खराब हुए सोफे पे आपको बिठा दे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ये बताइए। आप बैठ तो जाएंगे लेकिन आपका दिल जो है वो क्या होगा, गवाही नहीं देगा। तो इसीलिए तशबीब का हम लोगों ने क्या किया, फर्श बिछाना। तो यानी कि अगर हमारा फर्श अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है आगे भी जाके जो है वो चीजें जो है वो अच्छी होगी। आप किसी बैंकेट हॉल में या मंडप में जाते हैं तो पहले उसका क्या देखते हैं, एम्बियंस देखते हैं, पहले उसकी साज और सजावट देखते हैं। जब आपके घर पे शादी का कार्ड आता है तो आजकल यही देखते हैं कि भाई देखिए इस बच्चे की या इसकी शादी या फलाने की शादी जो है वो किस मंडप में या किस बैंकेट हॉल में हो रही है। अगर आपके आसपास का होगा कोई मशहूर तो आप एकदम खुशी में उठ जाते हैं। बाज लोग तो ऐसे होते हैं, मंडप का नाम सुनते ही जो है वो उसमें जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो कुछ ना होगा तो कम से कम सेल्फी तो अच्छी आएगी, फोटो तो अच्छे आ जाएंगे, खाना तो बात की बात है। ठीक। तो इसीलिए तशबीब को जो क्या माना गया है, अच्छा माना गया है। और जिसकी ज्यादा तशबीब अच्छी होगी उसका शेर जो है वो क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। तशबीब के हवाले से, किसके हवाले से, तशबीब के हवाले से। और इसीलिए कहा गया है कि तशबीब जितनी अच्छी होगी उतना कसीदा अच्छा होगा। यहीं पर एक सवाल आप मुझे बता दीजिए कि किसने या किस शायर ने सबसे ज्यादा तशबीब पर जोर दिया है या तशबीब पर सबसे ज्यादा काम किया है? तशबीब पर सबसे ज्यादा काम किसने किया है या तशबीब को सबसे ज्यादा पसंद की? बिल्कुल जोया सरताज ने सही आंसर दिया है, आंसर हो जाएगा गालिब। इसका मैं एक शेर आपको लिखवा रहा हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि जो तशबीब का शेर है वो किस तरह से होता है। तो गालिब का एक कसीदा है, उसका एक तशबीब जो है वो मैं आप लोगों के सामने जो है वो क्या कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। और वो ये है, लिख लीजिएगा। हाँ मैं, हाँ मैं नू सुने, हाँ मैं नू सुने हम उसका नाम, हम उसका नाम, हाँ मैं नू सुने हम उसका नाम, जिसको तू झुक कर रहा है सलाम, जिसको तू झुक कर, जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम।
जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम। बिल्कुल, महमूद अली ने बिल्कुल पहचान लिया कि ये बात कर रहे हैं हम लोग बहादुर शाह जफर की। हाँ मैनू सुने हम उसका नाम, जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम। हाँ मैंने उसका नाम सुना है, जिसको तू झुककर सलाम करता है। तो इसमें नाम नहीं लिया गया है, बल्कि उसकी तारीफ की गई है कि वो इतनी अजमत वाला है, इतनी इज्जत वाला है कि लोग उसे क्या करते हैं, झुक के सलाम करते हैं। क्या करते हैं? झुक के सलाम करते हैं। तो ये क्या हो गई? ये हो गया हमारा तशबीब का शेर। और यहाँ पे स्टार बना के लिख लेना, ठीक है, कि तशबीब के अशार, तशबीब के अशार, तशबीब के अशार मदा से, मदा से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि मदा के अशार ज्यादा होने चाहिए तमहीद इसमें कसीदे में, ठीक है। ये हुआ आपके हमारे नजरों में तशबीब के हवाले से। तशबीब के बाद जो दूसरा हमारा जुज आता है वो आता है हमारा गुरेज। क्या आता है? गुरेज। गुरेज के मायने क्या होते हैं? गुरेज के मायने होते हैं भागना के। गुरेज के मायने होते हैं भागना के। भागना कैसे होता है? तशबीब से हमें कहाँ भागना होता है? सीधा मधा पे। तो बीच में जो चीज आती है वो आती है हमारी गुरेज, ठीक है। इसीलिए गुरेज को हम लोग क्या कहते हैं? तशबीब और मधा को जोड़ने वाली कड़ी कहते हैं। कड़ी कह सकते हैं या पुल कह सकते हैं। तशबीब से मदा को जोड़ने वाली चीज गुरेज होती है, जिसे हम लोग कड़ी या पुल कहते हैं। या इसके अगर और थोड़े से मायनों में जाएं तो हम लोग इसे कहते हैं दो बैलों, दो बैलों को एक, दो बैलों को एक जुए में जोतना, एक जुए में जोतना। मीन्स आपने देखा होगा बैल के ऊपर जो है वो हल रखा रहता है। तो जो दो बैल होते हैं वो उसे क्या करते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं, एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। और तभी जो है वो क्या होती है? खेत की बुआई होती है या खेत में जुताई की जाती है। तो इसके जो है वो गुरेज के ये भी मायने हैं। पुल भी कहते हैं, कड़ी भी कहते हैं, और दो बैलों को एक जुए में जोतना भी जो है वो कहते हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना सा होता है गुरेज का, कि वो तशबीब को और मदह को, तशबीब को और मदह को क्या करे? एक साथ जोड़ ले। लेकिन शायर के पास ये काबिल हुनर होता है कि वो तशबीब कब खत्म कर दे और कब गुरेज पे आ जाए, वो बात पता नहीं चलती। इसलिए कहा जाता है गुरेज में बात से बात पैदा करने का हुनर होता है, बात से बात कहने का हुनर होता है या बताने का हुनर होता है। बात से बात कहने का हुनर होता है गुरेज में। और ये हुनर किसके पास होता है? जो एक अच्छा कसीदा को होता है। अब ये तशबीब का शेर मैंने आपको लिखवाया, उसी का ही नीचे का हिस्सा है, या कह सकते हैं गुरेज का हिस्सा है। तू नहीं जानता मुझसे सुन, तू नहीं जानता, तू नहीं जानता तो मुझसे सुन, तू नहीं जानता तो मुझसे सुन। नाम शहंशाह बुलंद मकाम, नाम शहंशाह, नाम शहंशाह बुलंद मकाम। तू नहीं जानता तो मुझसे सुन, नाम शहंशाह बुलंद मकाम। किबलाए जानो दिल बहादुर शाह, किबलाए जानो दिल, किबलाए जानो दिल बहादुर शाह। तू नहीं जानता तो मुझसे सुन, नाम शहंशाह बुलंद मकाम। किबलाए जानो दिल बहादुर शाह, मजहर जुल जलाल व इकराम, मजहर जुल जलाल
ज़ुल जलाल व इकराम वाला इकराम, सॉरी। तो ये किसकी बात की गई है? यहाँ पर की गई है बहादुर शाह जफर की, जो आप लोगों को तशबीब सुन के ही क्या आ गया था, समझ में आ गया था। तो ये क्या है? गुरेज है। यहाँ पर भी जो है वो नाम क्लैरिफाई नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप बहादुर शाह को ही समझ के क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तू नहीं जानता तो मुझसे सुन, नाम शहनशाह बुलंद मकाम, किबला जान और दिल बहादुर शाह, मजहर जुल जलाल वाला इकराम। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारी दूसरी इज्जाए तरकीबी होती है, जिसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, गुरेज कहते हैं। और ये तशबीब को मदा से क्या करता है, कनेक्ट करता है या जोड़ता है। ठीक। और इसके बाद क्या आ जाता है हमारा, आप सभी को पता है, इसमें मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, वो आ जाता है हमारा मदा। ठीक। और ये कसीदे का कसीदे का सबसे अहम इज्जाए होता है, इज्जाए होता है। और मदा में क्या की जाती है, ममदू की जाती है, ममदू की जाती है। ममदू यानी कि तारीफ की जाती है, जिसकी तारीफ की जाती है उसका क्या किया जाता है, बयान किया जाता है। और कसीदे का ये तीसरा इज्जाए तरकीबी होता है, ये भी लिख लीजिएगा, कब होता है, तीसरा। कभी कभी इसके जमानी तरतीब भी पूछ लेता है, तो जमानी तरतीब वही है, पहले आपका तशबीब आएगा, फिर गुरेज आएगा, फिर मदा आएगा, और फिर दुआ आएगा। ठीक। ये वाली बात। अब मदा को हम लोग कैसे पहचानेंगे, वो आपको जो है वो खुद ही पता चल जाएगा। सबसे इजी होता है तारीफ करना। बताइए, मुश्किल है कोई तारीफ करना? बहुत इजी है। दुनिया में सबसे काम है, जो आसान काम है, वो है तारीफ करना। किसी को भी कह दो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, वो एकदम से क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। या फिर आप दूसरी नजरिए से देख के कह दो आज तो बिल्कुल एकदम हैंडसम लग रहे हो, भले ही वो लग रहा हो हेडपंप, नहीं तो सन्नी देओल साहब उसे आके उखाड़ लेंगे। तो तारीफ करना है वो कोई बड़ा काम नहीं है, बस वहां पर आपको ये देखना है कि आप किसकी तारीफ कर रहे हैं। और इसीलिए तारीफ करने के लिए आपके पास अच्छे अल्फाज होने चाहिए, और एक ख्याल जो है वो बुलंद होना चाहिए। उसी में आप लोग क्या कहते हैं, मदा कहते हैं। और मदा हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, एक आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा, सहसवार तरीका है इंसाफ, सहसवार तरीकाए सहसवार तरीकाए इंसाफ, सहसवार तरीकाए इंसाफ, नौ बहार हदीकाए इस्लाम, नौ बहार हदीकाए नौ बहार हदीकाए इस्लाम, सहसवार तरीकाए इंसाफ, नौ बहार हदीकाए इस्लाम, जिसका हर फेल सूरत एजाज, जिसका हर फेल जिसका हर फेल सूरत एजाज, जिसका हर फेल सूरत एजाज, जिसका हर कौल मायने इल्हाम, जिसका हर कौल जिसका हर कौल मायने इल्हाम। ठीक। ये क्या है, मदा है, ये तारीफ की गई है। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ये गालिब का कसीदा है, और किसकी मदा में है, तो बहादुर शाह जफर की। शहसवार तरीका इंसाफ, नौ बहार हदीका इस्लाम, जिसका हर फेल सूरत एजाज, जिसका हर को मायने इल्हाम। ठीक है। तो ये होता है हमारा मदा का अशार या मदा का शेर। ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट और लास्ट, दुआ। ठीक है। मत दुआ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है। दुआ, दुआ में क्या होता है, दुआ में आखिर में ये इख्तिताम होता है, या ये आखिरी इज्जाए होता है कसीदे का। कसीदे का आखिरी इज्जाए होता है, या कह सकते हैं कि ये इख्तिताम होता है यहाँ पे कसीदे का। अब कसीदे में इख्तिताम करने के लिए जरूरी होती है दुआ।
क्योंकि यही क्या होता है, जो कसीदा गो होता है उसकी गर्ज यही होती है कि मैं दुआ करूंगा तो उम्मीद है मुझे कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। अगर इससे पहले में हम बात करें मद्दुआ में, तो मद्दुआ में वो अपने आप के लिए क्या करता है, अपनी जरूरत का उसमें जो है वो बयान करता है कि मुझे जो है वो इस चीज की जरूरत है, ठीक है, मुझे इस चीज की जरूरत है या मुझे इस चीज की गर्ज है। तो वो डायरेक्ट नहीं बताता, बल्कि इनडायरेक्ट वे में उसकी जिक्र करता है। लेकिन दुआ में वो सामने से अपने ममदू की क्या करता है, अपने ममदू के लिए दुआ करता है। जैसे इसी कसीदे का एक और शेर है, वो ये है अज़ल से रवानी आगाज, है अज़ल से रवानी आगाज, है अज़ल से रवानी आगाज, हो अबद, हो अबद तक, हो अबद तक रिसाई अंजाम, रिसाई अंजाम। यानी कि गालिब ने बहादुर शाह जफर के लिए या उसके सल्तनत के दुआ की है अज़ल से रवानी आगाज, यानी कि ये जो सल्तनत है वो ता कयामत तक क्या रहे, कायम रहे। उसके लिए जो है उन्होंने ये दुआ की है अज़ल से रवानी आगाज, हो अबद तक रसाई अंजाम। तो इस तरीके से ये कसीदे के जो चार इज्जाए तरकीबी हैं वो सारे के सारे जो है वो मैंने आपको बता दिया है। और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, गुड। इसके बाद ये जो हमने बात की ये कसीदे की फन और कसीदे के हवाले के, कसीदे के इज्जाए तरकीबी के हवाले से बात की। लेकिन कसीदे की तारीफ यहीं ख़त्म नहीं होती है, बल्कि कसीदे का आगाज़ भी ज़रूरी होता है। और मैंने शुरू में बताया था कि कसीदे का आगाज़ कहाँ हुआ है, अरब में। और अरब से कहाँ पहुंचा है, फारसी में। और फारसी से कहाँ आया है, उर्दू में। ठीक, तो ये इसका एक ज़मानी तरतीब है। कसीदे का आगाज़ अरब में हुआ, अरब से फारसी में आया और फारसी से उर्दू में आया। और उर्दू में भी जब ये लिखा गया तो कहाँ लिखा गया, शुमाल में लिखा गया या दक्कन में लिखा गया, ये भी अहम सवाल बनता है। उर्दू की पैदाइश शुमाल में ही बताई जाती है और दक्कन में ही बताई जाती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसकी कसीदे की पैदाइश की या कसीदे को फरोग जो मिला, वो मिला दक्कन में। ठीक है, कब मिला, तकरीबन 16वीं सदी के आसपास इसको जो है वो फरोग मिलना शुरू हुआ। और 16वीं सदी में ही एक सल्तनत कायम हुई दक्कन में, जिसे हम लोग कहते हैं कुतुब शाही। क्या कहते हैं, कुतुब शाही। और इसी का एक बादशाह हुआ है जो 5वें नंबर का बादशाह हुआ है। ठीक है, या 5वां बादशाह हुआ है जिसका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और इसको ही उर्दू अदब में उर्दू का कसीदा निगार माना जाता है, या उर्दू का पहला कसीदा निगार माना जाता है। उर्दू का पहला कसीदा निगार मोहम्मद कुली कुतुब शाह को माना जाता है। और ये कौन सा बादशाह था, 5वें नंबर का। कोई बता सकता है आप में से कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह मुगलिया सल्तनत के, मुगलिया सल्तनत के किस बादशाह के हम असर था? मुगलिया सल्तनत के किस, अकबर दो हुए हैं, अकबर सेकंड या अकबर फर्स्ट? अकबर भी तो दो हुए हैं, बताइए। अकबर द्वितीय या अकबर फर्स्ट? हाँ, बिल्कुल।
ध्यान रखना, वेरी गुड। कौन है? अकबर। अकबर फर्स्ट, जिसका जन्म हुआ था 1542 के आसपास, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह का 1566 के आसपास है। तो आप देख लीजिए, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, हम असर है। अकबर जो है वो उम्मी था। उम्मी कहते हैं कि अकबर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं था। और जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, उसको हमने उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर भी माना है। तो दो हस्ती हैं, एक ही वक्त की हैं, लेकिन अलग अलग वहां पर जो है वो मकबूल है। ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई। कल जो हम लोग आपकी क्लास में मिलेंगे, तो इसके बाद हम लोग कसीदे का कसीदे का आगाज व इर्तिका को पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास इतनी ही है। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। हाँ बेटा, जलालुद्दीन अकबर ही फर्स्ट है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और उनका असल नाम क्या है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का असल नाम क्या है? जीएस में पूछा जा सकता है, इसलिए पूछ रहा हूँ बस आप लोगों से। बिल्कुल, मोहम्मद शौकीन ने सही बताया, आंसर है बदरुद्दीन। आज की क्लास इतनी ही। कल आप लोगों से मुलाकात